So I'm just repeating the previous This class, call is just a now being brief. Okay. recorded. So mouth is containing a hard palate. The hard palate is the starting area where the teeth or the gums area belongs to. The extended part of the gums, जहाँ पे gums होती है, जहाँ हमारे मसूड़े हैं, उसका अगर हम extended part देखें, वो hard palate होता है, ठीक है? इतना जस्ट इसके पीछे वाला, इतना वाला एरिया, यहाँ तक का इतना एरिया होता है, जहाँ पे हम अपनी टंग को भी टच करेंगे, तो आप टच कीजिए, एक गुफा सी बनी है, ऊपर छत सी बनी हुई है. टच योर टंग upwards on the roof of your mouth. You can see there is a depth or dome like a shape. That shape is belongs to the, or we call it as a hard palate. The more you pull down, or say you will move towards your inside your mouth, this side, this side of your mouth, one second, this side of your mouth is like a very soft palate, okay, which is quite very soft. It is just to engulf or to digest, not digest, to engulf or to pass down your food from mouth to esophagus. ओके, अपना खाना जो आपने चबाया है, जिसको आपने एक पेस्ट में फॉर्म में बनाया है, चबा चबा के, वो वाला जो फूड का पार्टिकल है या वो जो नेवाला है, उसको नीचे धकेलने के लिए ये सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है. सेकेंडली, वी ऑल्सो लर्न रिगार्डिंग द यूवुला, this part, घंटी का द्वार और राजतंत्र द्वार. I told you regarding its function that it acts as a flap or a cap. It acts as a cap or the flap, which where it prohibits or it prevents any food particles to enter into our mouth. ओके, जहां पे भी हमारा खाना या कोई भी, जब कभी हम खांसते हुए या वैसे हम खाना खा रहे हैं, उस दौरान क्या होता है कि हमारा खाना ना ऊपर चला जाता है एकदम से. तो उस प्रयास में क्या होता है, उस जगह पे हमारा खाना कहीं ना कहीं नाक में ना आ जाए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना चला जाए, नाक के जरिए, कि नाक में गया, नाक से हमने उसको लिया और फिर वो हमारी विंड पाइप के अंदर चला गया, ऐसा ना हो जाए. तो इट प्रिवेंट्स इट्स एंट्री ऑफ व्हाट, entry of food particle, any food particle. Okay, then we learned regarding the tonsils. Then vestibule of mouth, जहाँ पे monkey या चिंपैंजी अपना बहुत सारा, नॉट मंकी, चिंपैंजी बहुत सारे केले रख लेता है, और ह्यूमंस में उन्हें हम देखते हैं वहां पे तंबाकू रखा जाता है, ठीक है. जिंजिबा मैंने बताया था थोड़ा सा नीचे, जो मसूड़े का, जो गम्स का नीचे वाला पार्ट जो होता है, विच इज लाइक अ जॉ बोन टाइप, और एम्बेडेड लाइक अ जॉ बोन, जो जस्ट गम्स के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट जो हम हमें देख पाते हैं, जिसपे हम ब्रश भी करते हैं, दैट पार्ट इज अ जिंजीवा. ओके, नाउ नहीं तो, ओके, द सेम थिंग दे आर explaining in technical words. Uvula is a small muscular flap hang posterior, पीछे की तरफ, margin of soft palate. Okay. Teeth are four types, which we already learned. It's very important, 32 teeth and 20 teeth, which we all know. Is everyone is present? Yes, Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. done. Okay, okay. Yeah. So, yes, ma'am. Yes, yes. one second. This makes a dental formula. This part. This side makes a dental formula. Okay. So how it makes a dental formula? 2I, 1C, 2 what? Premolars, and 3 what? Molars, where this part is the wisdom tooth. Okay? Everyone remembers the formula? I'm hoping yes. Yes. Yes, ma'am. Okay, good. So this is your 2, 1, 2, 3. Sorry, 3. I missed it out. One second. 2 molars and 3. Sorry,
2 premolars and 3 molars. Okay, whereas in the baby's teeth, which we know nearly at the age of 6 months to 2 to 2.5 years of age, a child always it is full of his mouth is full of teeth, means the jaw and the teeth are completely filled. Okay, till that age, if I count, not from the 6 months, from the 2 years to, just say 2 years to 12 years, nearly 12 to nearly 14 years, so depend on the age to age and person to person, nearly in 12 years, teeth start dropping. Okay, one by one the teeth start dropping and the new teeth are coming. So the age also, in a different type of age, like also changes. Sometimes it start dropping in nearly in at the age of 8-10 years old, which is common. Okay, but हम ये कहते हैं ऐसा, वो you usually say at the age of nearly 8 to 10 and 10 to 12, nearly these 20 teeth are start dropping. Okay, and new adult teeth, the permanent teeth are start coming. Okay, जब ये ड्रॉप कर रहे होते हैं तो ये कितने ड्रॉप करते हैं? The same count is there. Which the same count? The count is again the two incisors, one canine, yes, same, same, same. But there is zero premolars, which is very important. Zero premolars. Very, 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 very important point. It changes the whole dental formula. ओके, इसी जीरो प्रीमोलर्स की वजह से एक हमारा जो डेंटल फॉर्मूला पूरा चेंज यहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका काउंट ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या होगा, वो 2012 कर देंगे, ऐसा कर देंगे कुछ, तो आपको कंफ्यूजन में जरा ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। और फिर देन देयर इज 2 मोलर्स, दो देयर आर 3 मोलर्स, हमें ये काउंट पता है, तो लास्ट में क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो वो चेंज कहाँ करेंगे, वो चेंज इसी जगह पे करेंगे, जीरो वाली जगह पे, ताकि कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। सो यू ऑलवेज यू हैव टू रिमेम्बर, like 2102 is in child, and then in adult 2123। 21 2 से याद कर लो और 21 23 से याद कर लो, ये सेम सेम आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटा बच्चा है 2 साल का, बड़ा बच्चा है 23 साल का, 21 21 तो दोनों के आगे लगा ही हुआ है। 21 21 is common, 21 21 is common, you need to remember the different number, that is 2 years or 23 years. 23 years is you can say an adult, and 2 years like for the child. Okay, it's easy to remember. I really hope you won't make any mistake, please। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गलती मत कर देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। देन tongue we have discussed that tongue is a skeletal muscle। Okay, it's a muscular tissue, and in muscular tissue, which tissue? Skeletal। Okay, why? Because it is attached or associated with the bone. Which bone? Hyoid bone। Okay, this is the hyoid bone। Can you see this? ये हायोड बोन कैसी सी होती है, ये ना जो घोड़े की नाल होती है ना, आप सबने कभी नोटिस करो घोड़े की नाल कैसी होती है, हॉर्स शू जिसे कहते हैं, लाइक दिस, ऐसी होती है, ठीक है। साइडवेज में जैसे इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, वो ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। साइडवेज में अगर मैं इसको प्रॉपर्ली उठा के बाहर निकाल के अपने हाथ में देखूंगी तो वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी, ठीक है। द बोन वेयर और विद विच टंग इज अटैच्ड और एसोसिएटेड इज द हायर बोन। एंड फनी बात ये आती है, फनी इट्स अ फन फैक्ट, कि ये बोन किसी के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी पूरे शरीर में हर बोन किसी ना किसी बोन से अटैच्ड है। ये अकेली एक लौती ऐसी बोन है जो किसी और के साथ अटैच नहीं है। ओके, चलिए। It forms the floor of the mouth, made up of muscular tissue covered with the mucous membrane attached to hyoid bone. Superior surface contain numerous little projections called papillae। papillae मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हमारा ये आता है टेस्ट बड्स होते हैं, उसको हम पेपिले कहते हैं, ठीक है। पेपिले के बाद ज्यादा नहीं पढ़ना,
इसलिए वो डिटेल में आ जाता है कि कितने कितनी टेस्ट बर्ड्स हैं, कितने टाइप ऑफ पेपिले हैं। 4 टाइप्स ऑफ पेपिले होते हैं, टाइप्स कह रही हूँ। ठीक है, तो पेपिले कैसे कैसे होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं डिफरेंट टाइप, देन एक लेवल यहाँ पे होता है, फिर एक लेवल यहाँ पे होता है, और ये वाला पीछे ये गोले 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 गोले, ये देख पा रहे हैं हम गोले गोले से? ये देखिए, ये गोले गोले से दिख रहे हैं ना? सबकी टंग पे ऐसे प्रोजेक्शंस होती है, सर्कुलर प्रोजेक्शंस होती हैं, सबकी टंग पे ऐसे ही मिलते हैं। ये छोटे छोटे दाने दाने से मिलेंगे यहाँ पर, ये ऐसे दाने दाने से मिलेंगे यहाँ पे। और ये कुछ कुछ व्हाइट व्हाइट से कलर के होते हैं। हर जगह पे, हर सेक्शन में थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। आप देखना कभी, अब घर पे बैठ के जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये बड़े छोटे छोटे अजीब से दाने दाने से क्या है। और जिस जो टंग हमारी नीचे की सरफेस पे जो अटैच होती है उसे फ्रेनम बोलते हैं। फ्रेनम क्या चीज है? फ्रेनम वो चीज है, सेम टू सेम, याद करना, आपने खेचरी मुद्रा में पढ़ा होगा कि हमें हर 7 दिन के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, कोई मुझे अगर किसी को याद है जो पढ़ रहे हैं, हमें उसको काटना होता है खेचरी मुद्रा में। किस चीज से काटते हैं वो बताओ? बाल बराबर काटना होता है उसको खेचरी मुद्रा में। किसको याद है? नाखून, नाखून से मैम। किससे? नाखून से, या फिर एक आता है छोटा सा नाखून से काट, हल्का सा कट किया जाता है। नहीं, नाखून नहीं होता, हमारी योग की बुक्स में कुछ और वर्ड दिया है इसको। अच्छा। हट दीपिका में है। संहिता में, घिरन वो संहिता में ये दिया है कि वो किसी तेज धारीदार बर्तन उससे काटते हैं और एक जी चपटा से खींचते हैं। मैम कुछ जी, ऐसा वर्ड था, करेक्ट। पुअर टाइप कुछ था। हाँ जी, करेक्ट। उसी से ही उसको धीरे धीरे कट करते रहना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर ही मलहम होता है वो लगाना चाहिए, और ये हमेशा गुरु के सानिध्य में ही करना होता है। तो ये जो बाल बराबर हम काटते हैं ना, वो यहाँ होता है इसके नीचे। ठीक है, जिसको अटैच करके रखता है टंग को। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये इतना दिखाती हूँ, एक मिनट। ये हायर्ड बोन है, यहाँ से कुछ मस्कुलर प्रोजेक्शंस होती है, एंड देन ये टंग ऐसे टच होके यहाँ तक आती है ऐसे। ठीक है, ये वाला जो मस्कुलर पार्ट है ना, वो जा रहा है ये वाला ऐसे, ये रही टंग। ठीक है, अटैच होते हुए ये जा रही है, और ये इसके नीचे फ्रेंडम लगा हुआ है। आप जो ऊपर करके देखते हो ना, एक अजीब सा धागा सा लटका हुआ सा लगता है जिससे हमारी टंग अटैच होती है, दैट इज ओके। तूहर के पत्ते से, करेक्ट भूमिका साहू जी, यस, ये वर्ड था, तूहर का पत्ता, करेक्ट। मैम यही प्लीज तो क्लैप। मैंने भी हाँ जी प्रेरणा जी। मैम यही बोला था मैंने भी, पर मैंने तुअर बोला था, उसमें तुअर आपने पढ़ा है। नहीं लेकिन आई एम सॉरी, शायद दो वॉइस क्लैश कर गई, आई एम रियली सॉरी। कोई बात प्लीज नहीं मैम, क्लैप। कोई बात नहीं। ओके, प्लीज क्लैपिंग फॉर द भूमिका जी एंड प्रेरणा जी, जिनको ये याद था। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तू हर के पत्ता जो होता है, ये एग्जाम में आता है। ओके, चलिए। इट कंटेन्स टेस्ट वर्ड, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि इसके पास अपने टेस्ट वर्ड्स होते हैं। और ये क्या फंक्शन करती है? टंग टंग च्यू करने में हेल्प करती है, swallow करने में हेल्प करती है, स्पीच और टेस्ट में भी हमारा कार्य करती है। ये दोनों भी बीच में कॉमा है, जो एक कॉमा हमारा बीच में कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया, ये रहा। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, च्यू जब कर रहे हैं ना खाने को, तो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे गाय जुगाली करती है ना, वैसे वाला, खाने को कभी इधर घुमाएगी कभी उधर घुमाएगी। कुछ फंस गया दांत में तो उसे निकालने का कार्य करेगी। किसी चीज को हमने swallow करना है, दवाई को हम बिल्कुल ना जीभ की, जिह्वा की बिल्कुल एज पे रखते हैं, जहाँ घंटी का द्वार होता है। कहीं और अगर आ गई तो टेस्ट आ जाएगा उसका। क्यों टेस्ट आ जाएगा? क्योंकि टेस्ट पर तो वहीं पे थे। हम कहाँ रखते हैं उसको? जहाँ पे सर्कुलर पेपिला होता है ना, उसके पीछे घंटी का द्वार के पास, वहां टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। लेकिन अगर वो हल्की सी दवाई अगर आगे आ गई तो आपको टेस्ट आ जाता है उसका। क्या ये कलेक्ट होता है? ऐसे ही होता है। तो हम उसको कोशिश करते हैं कि फटाफट से ना पानी डालें, और फिर जिह्वा के सहारे ही, उसके सपोर्ट से ही हम अंदर लेके जाते हैं, यानी निगल जाते हैं मेडिसिन को। अब कोई भी मेडिसिन अच्छे से चबा चबा के नहीं खाता, इंजॉय करके कोई नहीं खाता, डिस्प्रिन कोई इंजॉय करके नहीं खाता, या कोई भी मेडिसिन, मेरे को इस टाइम पे नहीं ध्यान आ रहा। तो कोई भी मेडिसिन ऐसे हम टेस्ट लेके या स्वाद लेके नहीं खाते उसको। What we do, the tongue helps us in chewing. So how we chew our food? We chew from one side to another side. Like left side, I chew, then the same bolus or the same food particle we can move through to left to right side, then right to left. It's normal.
If you start eating from the left side, you will definitely feel that, oh, my left side is aching. Then you start moving it to the right side. So the shift from left to right is just with the help of the tongue. Then it helps in swallowing the food. The best example is when we swallow our medicine. When we put our medicine near to a uvula, and we just take some sip of water, and with the help of water and the tongue, majorly the tongue, we are able to swallow the same medicine downwards to the esophagus. Okay, and it also helps in speech. Of course, we have different swar or consonants in our language, in every language, and we can speak few would say consonants, but there are some different words or different alphabets which we can't speak, which we can't pronounce without the tongue. And the fourth part, the taste. We cannot taste anything if we don't have a tongue, or we don't have a taste bud on it. And every taste bud is not developed, and every taste bud is not present in every human being. तो ये क्या चीज थी, जैसे कि च्यू करना समझ आ गया, स्वॉलो समझ आ गया। स्पीच में क्या होता है, कई ऐसे स्वर है ना हमारे, हम आ उ म, ये कोई गूंगा भी बोल सकता है, जिसके पास जिह्वा में वो एक ताकत नहीं है जिससे कि वो बोल सके, वो भी बोल सकता है, वो वाले स्वर वो भी निकाल सकते हैं। पर जो अक्षरों में दूसरे अक्षर आते हैं हमारे, उसमें आप देखेंगे कि वहां पे उच्चारण के लिए हमें जिह्वा की सहारे की जरूरत पड़ती है। दांतों के पास ले जाना, लिप्स के पास ले जाना, लिप्स को खोल के बोलना, लेकिन हमारा टंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी वर्ड और एवरी लेटर वी हैव टू प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ द टंग। टेस्ट में क्या आता है, टेस्ट में अगर पेपिले, यानी कि पेपिले पे जो टेस्ट बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ये ना अंडर डेवलप्ड भी होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे को ना सारा खाना खिलाना चाहिए, उसका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। वो डेवलप होने का मतलब क्या होता है, वो डेवलप होने का मतलब ये होता है कि जहाँ वो टेस्ट बर्ड से ना, वो एक्टिवेट प्रॉपर्ली अपनी उस मोशन में नहीं आते, या उस फेज में नहीं आते जहाँ उस टेस्ट को पकड़ सके और वैसा डेवलप हो सके। ठीक है, कुछ एरियाज में आपने नोटिस करा होगा, कुछ लोग, ज्यादातर आपने देखा होगा, मिर्ची ज्यादा नहीं खा सकते, वहीं कुछ लोग मिर्ची बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट बर्ड कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। कुछ लोग खट्टा ज्यादा नहीं खा सकते, लेकिन कुछ लोग खट्टा बहुत खाते हैं। तो ये उनके टेस्ट बड्स हैं, वैसा डेवलप हुए हुए हैं। आप ये कुछ बाय बर्थ तो ज्यादा नहीं कह सकते, कुछ तो बाय बर्थ होते हैं ऑफ कोर्स। ज्यादा जो हो जाते हैं वो एक जैसी हैबिट है, या जिस तरह से हमारा खान पान है, खानदानी खान पान है, या सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में, किस तरह के एनवायरनमेंट में है, उस तरह से उसका टेस्ट बड डेवलप हो जाता है। We don't know the taste of some in many people don't know the taste of non-veg, but those who eat, they know the taste of exactly what they are eating, which non-veg they are eating. It's cow, it's any animal, I don't want to name it. So they know which taste or which type of food they are eating. तो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्लस इन द बाय बर्थ। ये भी आपने सुना होगा कि जो छोटा बच्चा होता है, अगर आपने 6 महीने के बाद से लेकर नियरली 1.5 years तक के बच्चे को अगर आपने सारी चीजें टेस्ट नहीं कराई, स्पेशली सून आफ्टर द 6 months टू नेक्स्ट 4 months, 2 to 4 months, अगर आपने बच्चे को हर चीज टेस्ट नहीं कराई है, तो वो नहीं खाएगा। वो बहुत तंग करता है बच्चा, वो नहीं खाता है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का फूड प्रोडक्ट क्यों ना हो, चाहे वो दाल ही क्यों ना हो, फ्रूट क्यों ना हो, या कोई भी ऐसा मसाला क्यों ना हो, वो बच्चा नहीं लेता। फिर उसका टेस्ट बड डेवलप ही नहीं होता वैसा। फिर वो एक एज के बाद जब वो टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं, या विद द क्यूरियोसिटी, वो खुद डेवलप करते हैं उस चीज को कि हाँ हमें ये टेस्ट करना है, तो समटाइम्स दे डोंट लाइक इट, दैट्स अ वेरी डिफरेंट पार्ट, बट दे नो उनका टेस्ट बट तो उनको टेस्ट कर रहा है ना, उनको पसंद नहीं आया एक अलग बात है, वो डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर वो डेवलपमेंट नहीं होगी तो बच्चा उसको जो चीज वो खा रहा है ना, अव्वल तो या तो उसको टेस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो बस सीधा पेट में चला जाएगा, चबाया और नीचे चला गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका वो टेस्ट ले ही नहीं सकता, उसको समझ नहीं आएगा, और वो या तो उसको वॉमिट आ जाएगी, या तो वो बस खाएगा ही नहीं उस चीज को। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो टेस्ट बर्ड्स को डेवलप करवाना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। नाउ सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, विच इज
आउट ऑफ द बकल कैविटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो इसमें लिख लीजिएगा कि हमारे पास 3 सलाइवरी 3 पेयर है वैसे ही, पहले तो इसे पेयर लिखो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। फिर आता है कि ये जो होता है ना, ये आउटसाइड दी बकल कैविटी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, एक होता है हमारे यहाँ पे कान के पास वाली जगह पे, एक हमारे गले में, गले के आसपास, टॉन्सिल्स वाले एरिया में जहाँ पे डॉक्टर्स दबाते हैं ना, थोड़ा उस वाले एरिया में, ठीक है। फिर आता है एक ये हमारा ये वाला जिह्वा के नीचे सबलिंगुअल, ठीक है। ये इसलिए ये जबड़े के पास नीचे आता है तो सब मैंडिबुलर, और ये कान के पास आता है तो पैरोटिड, इसको हम पैरट से याद करते हैं, ठीक है। पैरट, तोता, पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि शेप कुछ वैसी सी होती है, इसकी बीक जैसी शेप होती है कुछ कुछ, इसलिए, ठीक है। Then there are three pairs of salivary glands which are present near to an ear. The largest gland, this one is the largest gland. Which is the largest gland? Parotid gland is the largest gland. Okay. Then submandibular gland, which is I could say in the throat side, inside our mouth, or like out of the buccal cavity. Then sublingual means which is under the under your tongue. Okay. And we can see with the help of this parotid gland, our cheeks are moist or liquidy all the time. And because of the submandibular, of course, it excrete or it secrete lots of enzymes to digest our food. And then sublingual, we always feel, if I'm talking right now, the sublingual and the sublingual gland is the most prominent one. It's just excreting all the saliva, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू स्पीक। आप देखेंगे सबसे बड़ा जो पैरेटल ग्लैंड है जो हमारे कान के आसपास होता है, इस वाले एरिया में, यहाँ पे आप खट्टा खाते तो बड़ा एकदम से कान, जैसे कानों के आसपास कुछ होता है ना, खट्टा खाने पे, ज्यादा खट्टा खाने पे हम, कई लोगों को होता है, तो ये वही ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा है, ठीक है। और फिर मैंडिबुलर आता है, एंड देन सबलिंगुअल। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, इसकी वजह से हमारे चीक्स जो है, गाल, कपोल, अंदर की तरफ वाला भाग कह रही हूँ, जो मुंह के अंदर का भाग है, वो वाला भाग थोड़ा भीगा भीगा सा या मॉइस्ट रहता है, ठीक है, वो चिपका चिपका, रूखा सा नहीं रहता। आई एम सॉरी। और जो हमारे ये यहाँ पर आता है, जहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स के वाले एरिया पे, जहाँ पे डॉक्टर्स टच करके देखते हैं कि अच्छा क्या हुआ, कुछ मतलब गले में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे चेक करते हैं ना, दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एंड देन थर्ड वन इज सबलिंगुअल, जिह्वा, लिंगुअल मीन्स जिह्वा, सबलिंगुअल मीन्स जिह्वा, टंग, टंग को लिंगुअल भी बोलते हैं। बाइलिंगुअल कई बार आपने वर्ड सुना होगा ना, ये बाइलिंगुअल है, मीन्स उनको 2 लैंग्वेजेस आती हैं, 2 जिह्वा नहीं, उनके पास 2 लैंग्वेजेस है। तो चलो वो कहेंगे नहीं उनके पास 2 जिह्वा है, नहीं, ऐसा मत बोल देना, गलत हो जाएगा, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सबलिंगुअल, तो वो टंग जो होती है उसके नीचे, जब हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज को सोच के, जो लार बनती है ना, और ये लार हर वक्त बनती रहती है, ये लार चाहिए क्यों, पहले तो इस चीज को अच्छे से थोड़ा सा समझ लो। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त तो हमें मॉइस्चर चाहिए चाहिए, हमें वो लार चाहिए चाहिए, ताकि हम खाने को पेस्ट की फॉर्म में बना सके, ठीक है। अब खाना खा लिया, दांतों में कुछ चिपक तो नहीं गया, उसको एक तो जिह्वा, जो हमारी जो टंग है, वो धीरे धीरे करके उसको निकालती है, एक तो वो ये काम करती है। दूसरा कार्य क्या होता है, हमारे टीथ को ना वॉश करने का काम करती है हर वक्त, ठीक है। वॉश करने का मतलब कि उसपे कोई भी लेयर, कोई भी डेब्रिस चिपके नहीं, तो उसको हटाने का, उसको एक शाइन, या कहीं कि उसपे कुछ भी चिपका न रहे, कोई फूड पार्टिकल उसपे चिपका न रह जाए, तो वो ये कार्य करती है, वो लाइसोसोम का सिक्रेशन, वो काम होता है, लाइसोसोम का काम होता है। पर जब हम सो रहे होते हैं ना, ये वो तब कार्य नहीं करता, तब लाइसोसोम, यानी कि ये वो लेयर, जो एंजाइम्स जो निकल रहे होते हैं, जो लिक्विड निकलता है, जो सलाइवा निकलता है ना रात को सोते वक्त, ये वाला नहीं निकलता, लाइसोसोम नहीं निकलता, जो हमारे टीथ को क्लीन करता है ना, उसको वो वाला लाइसोसोम रात को नहीं निकलता, वो हमारी इसमें सलाइवा में निकलता है, वो रात को नहीं निकलेगा। अब इसलिए जब रात को नहीं निकलता, जब हम सो रहे होते हैं, जब हम सुबह उठ के देखते हैं, तो हमारे मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है, और इतनी बदबू आती है, उस पर एक लेयर जमी हुई दिखती है हमें, ओ हो, बड़े पीले दांत हो गए हैं एक रात में ही।
अजीब से दांत हो गए हैं, एक वाइट सी लेयर दिखाई देती है, बच्चों में तो बहुत ज्यादा दिखने को मिलती है, बिकॉज समटाइम्स इफ दे डोंट फॉलो द ओरल हाइजीन, देन आपको ये चीज बार बार देखने को मिलेगी. यू विल एबल टू सी दिस द लेयर, द वाइट लेयर on the on the top of your the teeth, on the gums, after soon after you wake up. It is just because the lysosome is not present in the saliva during the night or during the sleep cycle. Okay, the lysosome which is present in the saliva is not present while sleeping. Okay, it does not secrete. The saliva or the gland, salivary gland does not secrete at that time. But during the daytime, when we are awake, जब हम जगे हुए होते हैं, that lysosome contained saliva is continuously present और continuously secreting. तो जब हम जगे हुए हैं, हम अवेक पे हैं, तब ये निकलता ही रहता है. स्पेशली खाना खाने के बाद तो जरूर निकलता है, ठीक है. और कभी कभी हम जब कहते हैं ना खाना खाने के बाद आप माउथ वॉश जरूर कीजिए, तो वो हेल्प करता है कि जो चीज लाइसोसोम या कहें कि ये जो चीज सलाइवा कर रहा है, डबल डबल उसको काम करना पड़ रहा है, उसे बेटर तो ये है कि मैं उसको माउथ वॉश से एक बार जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स है उनको निकाल दूं, जैसे जीरा है या कोई बड़े पार्टिकल्स माउथ में रह गए हैं, उनको हम बाहर निकाल सकें. ठीक है. ओके. It secretes nearly 1.5 liters of saliva daily. 1.5 liters तो ये निकालता है, which is उसमें से 95 to 94% नियरली वाटर ही होता है. अब वाटर में क्या चीज है, जैसे मैंने आपको एक चीज यहाँ पे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. पानी हमारी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पानी हमारी बॉडी में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ना, उनको पानी की जरूरत होती है डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को तोड़ने के लिए. तो मतलब खाना खाते हुए पाना पानी पिए हम? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा. इन बातों में फर्क है. क्या फर्क है? ये नहीं समझ आया, थोड़ा सा समझाओ. ठीक है. एंजाइम्स जो होते हैं ना, आपने एक शिकवंजी बनानी है. ठीक है. आपने क्या बनाना है? व्हाट यू वांट टू मेक? यू वांट टू मेक अ लेमोनेड. तो एट दैट टाइम you must be required with a sugar, some salt if somebody likes it, then lemon and water, and lots of water. You know the quantity difference between these three: sugar, lemon, and the water. The least amount of is added is the lemon, because we need only few drops of lemon. Then sugar, nearly 2 spoon. I'm just taking example. And full glass of water, which is nearly 95, 96, 98%. Okay, 98% if I say, or 96. Okay, 96. 96% is the sugar and the lemon, and the rest of the 96% is what? Water. The only 4% is the sugar and the lemon. 96% is the water. And what we are drinking? We are drinking lemonade. हम शिकवंजी में क्या पी रहे हैं? और उसमें शुगर भी है, उसमें लेमन भी है, एंड बहुत सारा पानी है. पर जब आप उसको पी रहे हो तो क्या सिर्फ पानी पी रहे हो? नहीं. आपको पता है आप लेमनेड पी रहे हो, आपने वो एक घोल बनाया है. तो वो घोल बनाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है. तो पहले जब हम पानी पिएंगे, हमारी ग्लैंड्स उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे. ग्लैंड्स एक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं करते. ये प्रक्रिया क्या होती है? पानी गया, पानी की एब्जॉर्प्शन होती है हमारे स्टमक में. ठीक है. स्टमक से पानी हमारा एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया. ब्लड ने उस पानी को जिस जिस सेल को या जिस जिस ऑर्गन को चाहिए, तो सारे ऑर्गन्स को पहुंचाने का कार्य करता है ब्लड. ठीक है. तो जिस जिसको जितना जितना पानी चाहिए था, सबको पहुंचा दिया उसने. पहुंचा दिया, ठीक है. अब ग्लैंड्स के पास भी पानी आ गया. अब ग्लैंड से वो शिकंजी बना दी, जिसकी जैसे भी शिकंजी बनी. किसी ने शरबत बनाया, किसी ने शिकंजी बनाई, किसी ने सत्तू बनाया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक बनाई, वॉट एवर. सो ठीक है. सबने अपने अपने केमिकल मिला के उस पानी के साथ अपना अपना कोई ना कोई एक ड्रिंक तैयार कर दिया. ठीक है. कुछ ना कुछ तैयार कर दिया. उसे हम एंजाइम्स कहते हैं. ठीक है. वो जो एंजाइम्स है ना, उसके सॉरी उनको हम जूस कहते हैं. सॉरी. तो वो जूसेस जो होते हैं, जैसे सलाइवा हो गया, ये भी एक तरह का जूस है, जिसके अंदर मैक्सिमम इज द वाटर. 95 to 94% नियरली इज द वाटर. रेस्ट इज देयर एंजाइम्स, जो उस पानी के अंदर फ्लोट करते हैं और हमारा काम करते रहते हैं. ठीक है. क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसलिए पानी खाना खाते हुए नहीं पीना चाहिए. खाना खाने से आधे से पौना घंटा पहले पीना चाहिए. आयुर्वेद में यही लिखा है. रीजन यही है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ. रीजन यही है. दिन में बार बार प्यास क्यों लगती है मैम? फिर क्योंकि वो जो पूरी बॉडी का जो कंजम्पशन है, बहुत सारे काम कर रही है ना बॉडी अंदर, तो बहुत सारी कंजम्पशन जो उसकी होती है ना, वो यूज होती रहती है. इसलिए हमें बार बार पानी की जरूरत पड़ती है. जितना ज्यादा पानी फिर हम पीते हैं, अगेन पानी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी में. पानी उतना होना चाहिए जितना वेट होता है बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग पानी पीना होता है. ठीक है. ओके.
तो हमारी बॉडी में कौन कौन जूसेस बनाता है? एक तो सलाइवा बनाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। देन गैस्ट्रिक जूस होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं। फिर पैनक्रियाटिक जूस होता है जो पैंक्रियाज बनाती है। 3 हो गए। देन आता है चौथा बाइल जूस। फिफ्थ आता है इंटरस्टिशनल फूड जूस। इसको मैं कहीं लिखती हूँ पहले यहाँ पर, ऐसे हवा में समझ नहीं आता। ठीक है, पहला हो गया सलाइवा, इम्पोर्टेंट। देन आया गैस्ट्रिक, अगेन इम्पोर्टेंट। देन आया पैनक्रियाटिक, फोर्थ बाइल, फिफ्थ इंटेस्टिनल जूस। ये सारे जूसेस हैं। क्या है ये? जूसेस हैं। ठीक है, ये नियरली 1 to 1.5 लीटर्स है डेली का। डेली का है ये। ठीक है, ये है 2 to 5 लीटर्स। ये है अगेन 1 to, जो सेम सेम है ना उसको सेम सेम लिखती हूँ। ओके, ये है 1 to 1.5 लीटर्स और ये वाला नियरली 1 लीटर है। ठीक है, अब जो डिफरेंट है उसको लिख लेते हैं अलग से। ये डिफरेंट है, दिस इज नियरली 2 to 5 लीटर्स, बाइल इज 0.5 लीटर्स, तो सबसे कम ये वाला बनता है बाइल। ठीक है, एंड दीज आर सिक्रेटेड ऑन अ डेली बेसिस। Okay, the saliva secretes nearly 1.1 to 1.5 liters. Gastric juice, which in the body secretes nearly 2 to 0.5 liters. Pancreatic juice 1 to 1.5 liters again. Bile juice 0.5 liters nearly. And intestinal fluid is 1 point, sorry, juice 1 liter, nearly. Okay, nearly. It's not exactly this, but nearly. Now, the water content. Water content is nearly 94%. In this, nearly 95%. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, but its maximum is the water, we say. And in this 95%. And here also maximum. Maximum means which we don't have the specific percentage, but the maximum is the water. So you can see how much water we are required to drink or we need. The important term is hydrolysis. What is this, ma'am? Why hydrolysis? Why the chemistry is there? Hydrolysis simple, कोई कुछ ज्यादा नहीं डरना. Hydro means water and lysis means उस चीज के साथ उसको करके डाइजेस्ट करना फूड को, या पानी की पानी के होते हुए में किसी चीज को या किसी काम को ये तोड़ना या उस काम को करना। ठीक है, किसी भी चीज को हाइड्रोलिसिस, जब जिस जगह पे उस कार्य को करने के लिए या उस चीज को तोड़ने के लिए या बनाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता हो, वहां पे तो ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हमारी बॉडी जो डाइजेस्ट करती है खाना, वो जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस का काम करते हैं। ठीक है, पानी पिला पिला के मारते हैं किसको? खाने को। तोड़ेंगे तो कैसे? पानी पिला पिला के। ठीक है, तो हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ ली। वी हैव रेड रिगार्डिंग, वी हैव रेड 3 ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। Please, I request, remember these 3 glands because these are very very important glands. इनके नाम आते हैं एग्जाम में। Okay, one more thing I want to tell you. माइंड में था, मैं भूल गई। ओके, अभी याद आ जाएगा मुझे। ठीक है, The pharynx is divided into 3 parts. अपने तीन भाग कैसे हैं? 3 भाग ना वैसे अलग से भाग नहीं कर रखा। 3 भाग किस तरह से इसको बनाया हुआ है? Pharynx ना एक बड़ी टर्म है। ठीक है, जैसे कि एक घर के अंदर अलग अलग कमरे होते हैं ना, वो। ठीक है, किसी ने अपने घर का नाम दिया हुआ, जैसे कि वो क्या नाम था उसका? अब तो क्या किसी को सीरियल याद भी नहीं होगा। बोला तुलसी वाला, विरानी मेंशन ऐसे करके देते थे ना नाम, या एंटीला ले लेते हैं।
अंबानियों का एंटीला, एंटीला ना नाम है ना उसका शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो समझ लो फेरिंग्स ऐसे कोई नाम है, और उसके अंदर कुछ फ्लोर्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर का डिफरेंट डिफरेंट नाम है। Okay, pharynx is a big term, a compound term. Okay, where it has multiple floors or multiple sections or multiple rooms. These rooms are divided into three parts. Means a pharynx has three rooms or three levels or three shelves. So we divided into three categories, or three shelves are named as nasopharynx. ये हमारे नाक का एरिया, this is a portion of the nose. Then oropharynx, which is the area of our mouth or the back of our mouth. Then laryngopharynx, which is just starting after the oropharynx, branching downwards. Okay, ये कैसे है? We'll see. This part, the nose part, just above the uvula, that is called as nasopharynx. The whole floor of the nasal part, the nasal cavity where our nose belongs to, means nostril, where, and we do the which kriya, sutraneti. In the sutraneti, the sutra touches from here to here and it goes down like this to from the mouth. Exactly, it look like this. This the floor, or where the this thread moves down from this to this till this area. This is nasopharynx, and soon after, when we touch or we use or we pull down, sorry, push away, sorry, pull the same sutra from our nose to mouth, we take it out from our mouth, and we softly or gently we move from inward and outward, so that the whole naso, means nasopharynx, and the oropharynx will get clean easily. That is the whole concept of सूत्र नीति. होता क्या है, सूत्र नीति में हमने यहाँ से यहाँ इसको ले लिया अच्छे से, ये हमने सूत्र लिया, सॉरी, wrong brush. Ma'am, from हाँ जी. nasopharynx to oral, all three, it passes through all three or two? No, only two. Two, right? Yeah. Yes, Oropharynx, only yeah. two. Yeah, One this one and this one. yeah, Okay. yeah, two. So from nasopharynx, this side, and this is the oropharynx from the mouth. Okay. I hope this is now clear. Laryngopharynx is still not there. So laryngopharynx means what? It's still down. It leads to Yes, the correct. esophagus. It is just exactly when we start engulfing or when we swallow our food downwards, this way, this path. I think I have to use different one. नहीं, ये भी नहीं दिखेगा. This one. This is the laryngopharynx. This portion to this portion. I have to be very specific. Can't be like this. Once again. G. This much. This is your laryngopharynx. जहाँ से खाना निकलते हैं ना, निकलने का मतलब यहाँ पे मेडिसिन रखी थी हमने. We had put medicine over there in the last area or the near to uvula, and then we drink the water and we try to engulf the same medicine with the help of the tongue, and the same medicine goes down till this area, it's oropharynx, and the moment it enters just behind the thyroid, it is the laryngopharynx. Okay, this part is the laryngopharynx, and soon after you can see there is a flap. There is a flap. This flap. Wrong pen. Okay, just soon after covering that flap or the ring started, this is the esophagus. One second. Naso till here to here, then oro from uvula to just after that uvula we or could say the back of the tongue area, not exactly the tongue area, uh, the glands. The glands are present here. These are the glands are present here. Okay.
uvula, then the laryngopharynx. Laryngopharynx is the shortest. The size of the pharynx is the laryngopharynx. This is not I mean, it is not too much. It is a very small part at the back of the neck, or could say the cervical area, which is the from the back. It is the cervical area, and then just behind or in the middle part of the same, because in the front we can feel that there is a voice box and everything. Okay, that part is the laryngopharynx. Okay, and this is the trachea, esophagus. just जैसे कि oropharynx जैसे थोड़ा सा खत्म हुआ ना, उसके soon after और oropharynx सॉरी oropharynx ना थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, laryngo थोड़ा छोटा पार्ट है, और सबसे छोटा पार्ट है ये। फेरेंक्स के अंदर हम 3 कैटेगरी जो देख रहे हैं, सबसे छोटा पार्ट लेरिंगो आता है, नेजो काफी बड़ा है, ओरो तो थोड़ा छोटा है, देन लेरिंगो फेरेंक्स सबसे छोटा है। ठीक है, अगर हम साइज वाइज या लेंथ वाइज इसको देखें तो ये पूरा देख लिया। इसमें कोई है चीज, लैरिंग्स, ये रहा लैरिंग्स, ये वाला पार्ट लैरिंग्स का आपका आता है। ठीक है, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कैसे है। ट्रैकिया है, एपिग्लॉटिस है, ट्रैकिया है नहीं, ये इसोफेगस हमने बस देखना था, ये हमारी आहार नली है, विच इज योर फूड पाइप। Okay, about 25 centimeter long is the esophagus, 2 centimeter in the diameter, means a ring shape. This is a like long tube, which is its diameter is a 2 centimeter only and 25 centimeter long. From the 9 meters, the 25 centimeters belongs to this esophagus. Okay, continue with the laryngopharynx. Just after it follows the laryngopharynx basically, and just below the diaphragm, connect the स्टमक। जो हमारा एरिया आता है ना स्टमक का, जहाँ पे हम श्वास को लेते हैं छोड़ते हैं, तो हमारी एक ऐसा एक फ्लैप सा आता है, एक डोम शेप का कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज किस चीज का बना होता है? कौन सा टिश्यू का बना होता है? इज एनीवन? Skeletal. Keratin. Only Sumanji is No, reading it's or the learning. musculoskeletal. Huh? No, skeletal or muscular नहीं। Muscular skeletal. ओके, टेस्ट लेना पड़ेगा आपका, सैटरडे को टेस्ट है, और जो मिस करेगा वो क्लास से बाहर। Ma'am, please Saturday nahi. I क्यों? have a संडे? program at Asvyasa. ओह, There is नवरात्रि is there. Okay, 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 okay. nahi. Yoga Shakti फिर? Sangam one program is there at Asvyasa. Please, ma'am. Oh, Monday. okay. Monday. No, Monday is like a weekday, so I can't Okay. take on the Monday. Friday. Okay, then tell me everyone on Friday. Comment in the message box. Not now. Okay, we'll continue right now. The esophagus is a 25 centimeter long on the Friday. Okay, done. And then continues with the laryngopharynx and to diaphragm till diaphragm, and it connects to the stomach part. तो हमारा जो esophagus है ना, ये भी दो टिश्यूज में बना हुआ है। जो अपर पार्ट होता है ना, स्केलेटल मसल का बना हुआ है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू का, और जो नीचे वाला पार्ट आता है वो स्मूथ टिश्यू का आ जाता है, स्मूथ मसल का आ जाता है। ठीक है स्केलेटन का ही पार्ट, सॉरी मस्कुलर टिश्यू का पार्ट आधा वाला जो होता है स्केलेटन में आता है, और नीचे बाकी का पार्ट आता है स्मूथ मसल के अंदर आता है। स्केलेटन में क्यों आता है? ताकि वो मेरे कंट्रोल में रहे। जो हम खाना खा रहे हैं, आपने कई बार नोटिस करा होगा, हम उसको करते हैं ऐसे नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। Gulp. ठीक, वो मेरे कंट्रोल में है। अगर कुछ फंस जाता है ना, तो उसको हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको पास डाउन कर सकूं, पानी पिया उसको थोड़ा नीचे कर सकती हूँ थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही उस एरिया को क्रॉस कर जाएगा ना, नियर टू द हार्ट एरिया, वो वाला सॉरी हार्ट से थोड़ा नीचे वाला एरिया, वो आता है हमारा टिल स्टमक स्मूथ मसल का। ठीक है, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अब क्या है, खाना जो हमने खाया यहाँ से कांगे जो कोई नहीं बनी हुई, नहीं बनी हुई, चलो यहाँ बनाएंगे इसको, सुंदर सा बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश है। तो ये हमने खाना खाया, ये आहार, ये माउथ था, यहाँ से माउथ से नीचे आया ओरो, ओरो से नीचे आया लैरिंगो, लैरिंगो से नीचे आया ईसोफेगस, ईसोफेगस से गया जे शेप स्टमक में फूड। ठीक है, यहाँ पर तो इसका काम क्या था, इसने ना खाना यहाँ से खाना खाया, खाने को पेस्ट की फॉर्म में बदला, ये पेस्ट की फॉर्म में बदल गया। अब वो करते 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 नीचे नीचे आया,
यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी। व्हाट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जाम में कई बार आ चुका है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है? इट इज अ मूवमेंट व्हेन वी हैव टू पुश डाउन समथिंग और फूड पार्टिकल और अ पेस्ट और any liquid part through down our esophagus. How does it works? It's just like we are squashing something downwards. जैसे कि अगर पेस्ट, टूथपेस्ट निकालनी हो, पेस्ट में से जो टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसमें से मुझे पेस्ट बाहर निकालनी है, तो मैं उसको थोड़ा प्रेस करती जाऊंगी धीरे धीरे धीरे। अब इसोफेगस में तो मैं प्रेस तो नहीं कर सकती, अगर मैंने प्रेस करने की कोशिश करी तो कुछ ज्यादा ही जोर लगा देंगे, उसको चिपका ही देंगे हम, वो नहीं करना। तो इनकी मस्कुलर रिंग्स जो होती है ना, वहां उनको हेल्प करती है। जो मस्कुलर जिस जिस स्केलेटल मसल का ये बना हुआ है, वो अपने आप इसको हेल्प करता है कि मैं अपने खाने को ना धीरे धीरे इसको डाउन करूं। तो वो कैसे हो जाता है? वो कुछ इस तरह का सा होता है। ठीक है, ये ऐसे आया और यहाँ पे फूड पार्टिकल आया, ठीक है, मान लीजिए। तो ये इसको नीचे डालने की कोशिश करेगा। सॉरी, गलत जगह पे बनाया मैंने, रुको। मैम वो टर्म का नाम बता दिए फिर से। पेरिस्टालसिस, लिखती हूँ, एक मिनट रुकिए। एक सेकेंड, ठीक है, अभी बताती हूँ। तो ये फूड पार्टिकल यहाँ से नीचे जा रहा है, तो पहले तो यहाँ खुद मोटा हो जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे स्क्वीज आउट करके नीचे भेजने की कोशिश करेगा, फिर खुद यहाँ भरेगा, फिर नीचे तक लेके जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे किसी चीज को पुश करके नीचे नीचे लेके जा रहे होते हैं, तो वो उसके ना एक मूवमेंट होती है, एक हलचल सी होती है। इसे पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, किसी चीज को नीचे नीचे सिकोड़ के लेके जाना। यहाँ पतला हुआ, जैसे जैसे पतला होता जाएगा ये नीचे से खुलता जाएगा ये वाला एरिया, फिर उसके अंदर ये फूड बोला तो भर जाएगा, फिर ये नीचे लेके जाएगा इसको और पुश डाउन करेगा, फिर इसको नीचे लेके जाएगा, इसको पुश डाउन करेगा। अल्टीमेटली ईसोफेगस का काम क्या होता है? यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट। इस एरिया में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ईसोफेगस में नो डाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और डाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। यहाँ किसी भी चीज की कोई डाइजेशन नहीं होती, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती, कुछ नहीं होता यहाँ पर। इसका काम सिर्फ माउथ से स्टमक तक खाने को भेजने का है, बस, फुल स्टॉप, इसके अलावा कुछ नहीं करता ये। ठीक है, कोई रोल नहीं है इसका। ओके, तो ये खाना ना, एक और चीज है जो मेन पॉइंट में समझाना चाह रही थी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती ही क्यों है। अगर ये थोड़ा सा मोटा होता, हम खाना डालते, खाना नीचे बस गिर जाता जाकर स्टमक के ऊपर, है ना, हमें क्या फ्रॉड, मतलब कि कितना इजी हो जाता ना, खाना खाया यहाँ से और चबाया, पेस्ट बनाई और बस नीचे डायरेक्टली किसके अंदर, स्टमक के अंदर। पर ऐसा करने से स्टमक हर्ट हो सकती थी, स्टमक में चोट लग सकती थी। बहुत मोटी या कहीं बहुत भारी अगर आपने निवाला लिया है, आपका मॉर्सल जो है बहुत ही मोटा या बहुत ही भारी है, यू डिडंट च्यू इट वेल, इफ एनी morsel you have taken, any bite you have taken, and that bite is not converted into the paste, you didn't do that much of grinding or crushing, that food particle is quite large as compared to the normal paste one. And if you throw down from from laryngo to esophagus and down to the stomach, if the peristalsis movement is not there, then it just directly goes to the stomach and it will hurt the stomach very easily because that food particle is quite heavy in weight and it may hurt in a different ways. It could be in different ways, it could hurt the stomach, so the peristalsis movement helps it. Okay, helps the stomach to or to prevent the stomach from any harmful or any injury, okay, from that food particle. Okay, कोई point रह तो नहीं गया? Okay, the upper end closed by the circopharyngeal sphincter and prevents the air passing into the esophagus during the inspiration and expiration. ये आपको sphincter के बारे में तो नहीं इतना पढ़ना, ये ज्यादा हो जाएगा। यू मे बी इन एग्जाम आ सकता है ये, इट कुड बी, क्योंकि आज के टाइम में एग्जाम को थोड़ा सा हैवी कर रहे हैं ये और लाइक थोड़ा सा टफ कर रहे हैं।
तो ये ईसोफेजियल जो स्पिंटर है, स्पिंटर इज लाइक व्हाट, इट एक्ट्स लाइक अ, वो देखिए आपने, दीज आर स्पिंटर्स like a flap or like a valve. ये नाम दे दिया, according to different locations it just act like a flap, normal a door, but it does not open in the, it opens only in the one direction. It is not open in the double directions. Okay, if it is open downwards means downwards, then the flap will close. It won't go upwards. Okay, and the sprinters are always in a one direction only, the same as the valves. Okay, it only acts in a single direction. So here the upper end of the esophagus is the in the downward direction, that it stops, prevents the food to enter into the windpipe, or prevents its air passage, so that the no food particle, no bolus would enter into the uh, from the esophagus to the windpipe. Okay, or then the trachea. The lower end, the same of the lower end is closed by the esophageal sphincter, which prevents the gastric और acidic reflux. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये क्या चीज है बताते हैं अभी. तो ये क्या है, जो ईसोफेगस है, जो आहार नली है ना, उसका ऊपर वाला भाग जो है ना, जहाँ पे ये दोनों अलग हो जाते हैं, आहार नली और हमारी श्वास नली अलग अलग होती है. तो ये जब इसके अंदर खाना चला ना जाए, खाना चला ना जाए, जब हम खांस रहे हैं, तो खांसी में क्या होता है, खांसने में दो चीजें होती है, हमारी फूड पाइप से आहार नली में, सॉरी आहार नली से हमारी श्वास नली में खाना चला गया, तो हमें खांसी आती है. समटाइम्स फूड पार्टिकल ही अपना बहुत मोटा है, अब मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, पीछे से हाथ मारा, थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इस सारी प्रोसेस में कहीं ऐसा ना हो कि वो फूड पार्टिकल फिर से ऊपर चला जाए. तो वो क्या करता है, वो नीचे की तरफ धकेलता है कि तुम नीचे जाओ, ऊपर मत आना, नहीं 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 नीचे जाओ, तुम्हारा काम नीचे है. ऊपर आओगे तो गलती से कहीं विंड पाइप में ना चला जाए, तो उसको नीचे धकेलने का एक दरवाजा लगा देता है, एक फ्लैप का काम करता है. उनको हम स्पिंटर्स कहते हैं. स्पिंटर्स, इसमें ना स्पिंटर्स में एच गायब है, तो स्पिंटर बोलना है इसको. ठीक है, तो पता नहीं क्यों एच क्यों लगाते हैं जब साइलेंट है, तो आई डोंट नो. ठीक है, लोअर एंड जो होता है हमारा, वो ईसोफेजियल स्पिंटर है. वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है. दिस स्पिंटर हेल्प्स कि जैसे ही ईसोफेगस से लेकर खाना गया स्टमक के अंदर, ये था ईसोफेगस, ठीक है, ये स्टमक के अंदर गया, ये जो एरिया ना, ये वाला, इसको कहते हैं esophageal sphincter. What does it do? It also acts as a flap, as a door, that anything which goes downwards from esophagus to stomach, it won't go upward again. Okay, it won't change its direction just because of anything. It's just like if I put anything on the stove or on the gas, and I put anything like maybe a chai or any food particle or any food stuff I'm cooking, and I just close the lid so that anything. Okay, just take an example of the popcorns. I have to close the lid, otherwise it will pop out, and just my kitchen will be full of popcorns if I don't close the lid. एग्जैक्टली ऐसे करता है. जैसे कि अगर हम पॉपकॉर्न बनाते हैं, तो हमें कुकर या जिसमें भी हम बना रहे हैं, हमें लिड लगानी जरूरी है. अगर हमने लिड नहीं लगाई है, तो पॉप आउट करके वो बाहर आ जाएंगे. क्यों पॉप आउट क्यों हो जाएगा, सब कुछ क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारा एसिड है. ठीक है, प्लस यहाँ खाना ना बहुत सारा भर जाता है, तो जब उसको तोड़ रहा है, खाने को मथ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसमें से कुछ भी ऐसा ना हो कि वो बाहर आ जाए, ऊपर की तरफ, यहाँ वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना कर जाए. मैम ऐसा कभी होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा होता है इन विच केसेस. क्या आप सब मेरे साथ हैं क्लास में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, we are there listening. ओके, सो खाना ऊपर तक ना चला जाए. जैसे कि हमने खाना खाया, उसके बाद हमने उछलना शुरू कर दिया बच्चों ने, या कुछ भी ऐसे करना शुरू कर दिया, या कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो खाना ऊपर की तरफ ना चला जाए. नहीं मैम, नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा मैम? यहाँ पे ना ओसोफिजियल स्पिंटर होता है, अभी आपने बताया. हाँ जी, एग्जैक्टली. ओसोफिजियल, ओसो, ये ईसोफिजियल, एक्चुअली ओसो नहीं, सॉरी, ईसोफिजियल स्पेलिंग्स वाइज डिफरेंट है, क्योंकि कभी कभी इसको ईसो भी लिखते हैं, ईसोफिजियल भी लिखते हैं. सॉरी, ये नहीं आएगा. यहाँ से भी शुरू करते हैं और यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, इट डिपेंड्स. ओके, कहीं से भी इसकी स्टार्टिंग हो सकती है. ईसोफिजियल स्पिंटर, ठीक है.
अब मेन पॉइंट क्या समझाने लगी थी, खाना ना स्टमक के अंदर नियरली 4 आवर्स तक रहता है। ठीक है, खाना कितनी देर रहता है? नियरली 4 आवर्स तक रहता है खाना हमारे पेट में। ठीक है, और यहाँ जब ये आया खाना, ठीक है, अब क्या हुआ, जनरली आपने सुना होगा, जनरली ओल्ड एज में आप सुनोगे, ये सुनने को मिलता है Ma'am, one कि doubt, ma'am. जी प्लीज। If we eat means the food particles goes down only, no? How it Yes. comes upward? How it comes upward direction? If we then if we full our stomach with the food, like Uh, a meal is totally full and the hmm, capacity of the stomach is not that much, and hmm, I completely filled up my stomach. That reason. Second reason, when it is just doing its process, it's munching or it's grinding the food particles again, because it's a paste. I'm telling you it's a paste, but in hmm, reality, do you make it as a paste and uh, pass down to the stomach? No. In general, we don't. hmm. In general, we don't. Still the food particles in the not in the smaller part, or in the smaller part, it is not still as a paste, the paste that which is required or the necessary part of the stomach to use the food. So Okay. when it comes down, just taking example, it is a paste. I'm just taking example. Yes, it is a paste. Now we Okay. have filled our stomach till this much. Now it is grinding like it is just like grinding like anything on the stove. Everything is just over there. It is doing its work. Now, if anyone is doing anything, it just or just taking an example, the person is standing or doing any work or start doing any work. They don't have any much of time, then the food particle or that food product or the any morsel may get tends to go upwards. Now I'm giving the example how Uh, the sphincter opens, this food particle will goes up. Why? In any of the directions, because the in the stomach here. I've made too much, huh? okay. Okay, just give me an example. 1 second, just give me a moment. I'll draw it again. Here is the stomach. Okay, I'm just remaking right now. The stomach is divided into the 3 parts. One part, two part, and the third part. There's also one sphincter. Okay. Right now we are not telling you this sphincter. We are talking this sphincter right now. Okay. We are Hmm, talking about this flap. अभी हम इस flap की बात करें जो कि esophageal sphincter है. ठीक है. uh, यहाँ pyloric sphincter होता है वैसे. ठीक है. तो ये 3 पार्ट है. ये कार्डियक है, ये फंडस है, and then it's just one. Third one. Okay. Um, the point is there is lots of hydrochloric acid is there. Lot of. Okay. hmm. बहुत सारा. And then the food particle or the paste comes down here. No, the diagram is different. Just give me a moment. मैम स्टमक तो शायद 4 पार्ट में होता है ना? नहीं, एक मिनट को बताते हैं. एक सेकंड रुको. ये ना ऐसे जाता है. ऐसे. यू. गलत बन रहा है मुझसे. एक मिनट को. अच्छा नहीं बना. समझ नहीं आएगा. एक सेकंड रुको. ये ना एक सेकंड. ये esophagus यहाँ से ऊपर से जाता हुआ ये ऐसे होता है. ठीक है. जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये कार्डियक होता है. दिस पार्ट इज द फंडस. ओके. एंड द लास्ट पार्ट जो जो स्पेंटर्स हमारा ऊपर का आता है हमारा, दिस पार्ट. यहाँ स्पेंटर एक और होता है. ये वाला एक स्पेंटर होता है इसोफेगस का. तो जो फूड आता है वो यहाँ से एंटर करता है, यहाँ पर इस वाले एरिया में एंटर नहीं करता. ठीक है. ये क्या है, हम जब कहते हैं 1/4 पेट खाली होना चाहिए, तो हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे होते हैं, कार्डिक वाले एरिया की बात कर रहे होते हैं. जब खाना यहाँ तक पूरा भर जाता है, देन फूड विच एक्चुअली लाइक फिल्ड अप टू मच, देन इट्स गोज बैकवर्ड्स. आप देख रहे हो खाना यहाँ पे आया हुआ है, इस तरफ आया हुआ है. और जब कोई भी चीज इतनी ज्यादा फिल्ड अप हो जाए और इट एंटर्स जस्ट एग्जैक्टली फ्रॉम इस एरिया टू दिस मच एरिया, this area, then it can easily flow backwards.
It is very easy because the lots of hydrochloric acid is still present to grind the fluid, sorry, to grind or to say to digest the food or to absorb the food, to digest the food basically, not absorption. Absorption is different word for the same. Okay. So in the cardiac, there is no food or food product is not there in the cardiac. Okay, the one who is said something कि स्टमक के तो 4 पार्ट होते हैं, Yes, किसने कहा ये? मैम हाँ मैं जी, 4 पार्ट होते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है ना, फंडस एंड देन बॉडी एंड देन पाइलोरिक स्फिंक्टर के पास वाला एरिया को कहते हैं हम। एक सेकंड, कुछ डिफरेंट ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं जी। ये वाला एरिया मान लीजिए, ये वाला आता है। फंडस ना थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, फंडस इतना बड़ा नहीं होता, होता सबसे बड़ा वैसे वही है, सबसे बड़ा वैसे बॉडी होती है, सॉरी। और मैम एक और कंफ्यूजन है मुझे, जी जैसे कि जी जी। आपने इसमें सी जो बताया है ना, मतलब पहले थोड़ा सा पढ़ा था, तो जो ये जो सी होता है कार्डियक वाला, ये ऊपर से कनेक्टेड होता है क्योंकि इसको हाँ जी। कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। तो ये एफ है, ये फंडस जो हमारा गैस वाला पार्ट होता है, यहाँ हाँ पर जी, हाँ जी सी जी लिखा जी है। जी जी, मैंने थोड़ा सा गलत बताया, एक सेकंड रुकिए। फिर बॉडी पार्ट होता है, फिर जी 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 नहीं, ठीक है, ये आता है पार्ट हमारा फंडस, सॉरी, ये कार्डियक पार्ट आता है क्योंकि ये थोड़ा कार्डियक के पास होता है ये वाला एरिया, और देन बॉडी आती है। तो मैम इसका ये मैं भी सी नहीं होता, जहाँ ऊपर आपने वो छोटा सा पाइप बनाया हुआ है ना, जी, वो एक मिनट क्योंकि वो रुकिए। हार्ट के पास होता है। ये क्या था, यहाँ से यूं ऐसे, फिर ये जे शेप जाता है, वन सेकेंड, ये जे शेप तक गया, देन ये यू एंड दिस पार्ट क्लोज डाउन नियरली, थोड़ा सा गंदा सा है, समझ नहीं आएगा ऐसे, नियरली ऐसे, ठीक है। ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से है। हम्म, तो ये जो एक यहाँ पे जो स्फिंक्टर है वो यहाँ लाई करता है, ये स्फिंक्टर है यहाँ पर, ठीक है। और ये एक पार्ट होता है यहाँ, एक डायसेक्ट करता है, और एक एरिया ये ऐसे आता है, एंड द होल बॉडी इज लाइक दिस। तो यहाँ बॉडी होती है, यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर के पास का छोटा सा एरिया पाइलोरिक एरिया कहलाता है, एंड दिस एरिया इज द कार्डियक एरिया एंड द फंडस एरिया। हाँ मैम, अब बताइए, हाँ हाँ मैम। ठीक है, ओके। तो बॉडी में जो ये एरिया आता है ना, यहाँ पे जब खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, इस जगह पे बहुत सारा हमारा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकल रहा होता है। तो ये सारा कुछ एरिया, मतलब खाना जब बहुत ज्यादा आ जाए बॉडी में, तो हम कहते हैं 1/4 पेट भरो। कि 1/4 में क्या होता है कि जब ये खाना नीचे ऐसे एंटर करके यहाँ तक पहुंचा है ना, इतने एरिया में, तो खाना भी यहाँ पहुंच रहा है, और आप खाना भी खा रहे हो, देन पानी भी पी रहे हो। पानी इसलिए हम मना करते हैं, तो पानी का रीजन और भी बहुत सारे हैं, पर अभी हम समझेंगे पानी नहीं लिया। तो खाना लिया, खाना जब हमने यहाँ तक भर दिया, धीरे धीरे यहाँ तक भर दिया, या थोड़ा सा और ज्यादा खा लिया, तो वो सीधा ऊपर जाके ऊपर जाना जाना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड फ्लो करना शुरू कर देता है ये। आप ये समझिए कि किसी चीज को मथना है, मैंने किसी चीज को हिलाना है, कढ़ाई में बहुत सारा सामान डाला है, अब मैं उसको हिला रही हूँ, तो कुछ चीजें बाहर निकल आती है। पूरा खाना बाहर नहीं आता है, पर कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं। कुछ जैसे कि आपने आलू गोभी बनाई, थोड़ी सी आलू बाहर निकल गया, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो वो जो थोड़ा सा बाहर निकलता है ना, उसको हम गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गैस्ट्रिक मैम रिफ्लेक्स बोलते कभी हैं। कभी ओवर ईटिंग हो जाती है तो डकार लेने पर भी आ जाता है। आता है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये आपको सबसे ज्यादा महसूस कब होता है? ये सबसे ज्यादा महसूस होता है तब जब हम कुंजल कर रहे होते हैं। वी ऑटोमेटिकली फील कि बस अब बहुत हो गया, अब पानी नहीं पिया जाएगा, अब इसको बाहर निकालना पड़ेगा। एट दैट टाइम हमारी गजकरनी अपने आप हो जाती है, हमें खुद इंड्यूस नहीं करना पड़ता वॉमिट को। क्या ऐसा होता है किसी के साथ? यस मैम। और जो हम कहते हैं ना हार्ट में जलन हो रही है, और कई बार ओल्डीज कहते हैं कि मुझे ना बड़े अजीब अजीब से खट्टे खट्टे डिकार आ रहे हैं, तो वो यही चीज है, So गैस्ट्रिक at the रिफ्लेक्स। time, esophageal sphincter helps. Okay, ma'am? यस, इट हेल्प्स। जब ये वीक हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द एज, जब ये थोड़ा वीक हो जाता है, देन द फूड प्रोडक्ट और द फूड पार्टिकल्स विल फ्लो अपवर्ड्स, because the muscles are not working efficiently now. There is less strength is left in the body. The muscles or the tissue muscles, the tissue part is quite losing its strength. So then at that point, the less hydrochloric or the other gastric juices are not producing enough to maintain or to prevent its backlog or its backward, could say backward flow.
of the food particles. Okay, वो रोक नहीं पाते, पीछे की तरफ थोड़ा सा वीक हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. जनरली विद द पैसेज ऑफ टाइम इस सुनने के लिए ऑलमोस्ट डेली सुनने को मिलता है ऐसा कि आज अजीब सा लग रहा है, थोड़े खट्टे टिकार आ रहे हैं. आई एम एक्चुअली टेस्टिंग व्हाट आई हैव ईटन, समथिंग, एनीथिंग, whatever I ate, I can taste it now. I'm not talking about the burps. बर्ब की बात नहीं हो रही है, डिकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे खाने की बात हो रही है. इसलिए वो जलन मचाता है. तो जलन क्यों मचाता है? जैसे कि खाना अंदर गया ना, और ऊपर अगर जैसा आता है तो वो बड़ा एसिडिक होता है, क्योंकि पेट से निकल के आया ना, और पेट में क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ आएगा तो मीन्स वो एसिड के साथ ऊपर आया है, इसलिए वो जलन मचाता है. और वो ईसोफेगस को वहां से जलाता है, उसको सड़ने लगती है ईसोफेगस वहां से, इसलिए जलन मचती है. इसलिए अंदर से बड़े अजीब अजीब सा लगता है. और हम कोशिश करते हैं कि पानी पिए ज्यादा, ताकि वो नीचे उतर जाए. और फिर हम पानी के साथ साथ हम कुछ अलग अलग चीजें लेते हैं, जैसे कि मिश्री, इलायची, सौंफ, अजवाइन. हम जो डाइजेस्टिव चीजें जो होती हैं उसको लेने की कोशिश करते हैं, सो दैट जो जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस उस टाइम पे रिलीज नहीं हो पाए हैं, वो विद द हेल्प ऑफ दीज small small things or the small household would say household or the kitchen things we eat to help our digestion. वो easy हो जाता है, थोड़ा सा easy हो जाता है. ठीक है. Opening of diaphragm through which the esophagus passes from thoracic to abdominal cavity is esophageal hiatus. ये नहीं याद करना, रहने दो, नहीं आएगा. इतनी डिटेल आपसे नहीं एग्जाम में पूछेगा कि उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे. ठीक है, थोड़ा डिटेल में भी है ये. हाँ हाँ जी प्रियंका जी, पूछिए प्लीज. हेलो मैम, मेरा एक हाँ जी. क्वेश्चन था कि जी. कई बार हम खाना खाते हैं तो जनरली मतलब ऐसे कि हम लोग को डकार आ ही जाती है हाँ और जी. कई बार नहीं आती है, तो उसका रीजन क्या होता है? और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है कि जी. जैसे जो एसिड रिफ्लक्स होता है ना, आजकल जनरली सबको प्रॉब्लम हो गया है, तो जी. ऐसे कोई फूड मैंने 4 आवर पहले खाया और कुछ मैंने अभी जस्ट खाया, तो होता है कि जो हम्म. अभी खाया वो डकार में नहीं आता है, लेकिन जो वो पहले हम्म. खाया है हम्म. वो आ जाता है, तो दैट मीन्स वो डाइजेस्ट नहीं हुआ जाके ये मतलब वो अंदर ही करेक्ट. अंदर रहा हुआ पेट में। करेक्ट. तो जो ये हम बताइए। मैंने अभी बताया कि स्टमक में नियरली 4 आवर्स तक खाना रहता है. अगर आपका हम्म, मूवमेंट अच्छा है और आपने अपनी प्लेट हम्म, में, आप प्लीज म्यूट कीजिए जी. प्रियंका जी प्लीज म्यूट कीजिए जी. थैंक यू. तो आपने जो भी खाना खाया ना, वो 4 आवर्स तक तो पेट में था, लेकिन उसके रिक्वायर्ड जूसेस नहीं हुए, मिले नहीं उसको. या तो 4 घंटे से पहले फिर से खाना खा लिया गया, कुछ भी खाया, ठीक है. और या तो जो भी जूसेस हैं वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहे हैं टू डाइजेस्ट दैट फूड, और उसको पास डाउन करने में टाइम लग रहा है. या आप किसी ने भी, वो जो फूड था वो बहुत हैवी था, जैसे कि मैदे का कुछ बना हुआ, या दाल थी, कुछ भी, या फिर मिल्क था, मिल्क को डाइजेस्ट और होने में मैम मेरा 11 घंटे. क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जो हम्म. पहले वाला फूड है, जैसे रिफ्लक्स हुआ, मान लो जैसे हमारे पेट में खाना आया तो लेयर बाय हम्म. लेयर जो अभी गया हम्म. तो वो हम्म. एकदम से कहीं कहाँ चला जाता, और जो बहुत पहले खाया तो वो ही ऊपर क्यों आता है, जो अभी खाया वो क्यों नहीं ऊपर आता है? मतलब ये इसका मतलब रीजन जानना चाहता हूँ। ठीक है नहीं, ऐसा तो नहीं होता है वैसे. पर जो आप डकार की बात कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग. जो खाना ऊपर आता है, मैम, दैट्स अ ऐसे डिफरेंट थिंग. रिफ्लक्स में मैंने कई बार फील किया है क्योंकि मुझे हम्म. हम्म. पेप्टिक अल्सर था, तो मैं उस हम्म. चीज से हम्म. फेस हुई, मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी थी, तो मेरे साथ ऐसे होता था जो खाना मैंने बहुत पहले खाया तो वो मेरे ऊपर आ रहा, हम्म. जो अभी खाया वो नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे हम्म. जनरली मतलब थूकना ही पड़ता था कहीं पे भी, ऐसे खाना ही मुंह में आ जाता हम्म. था हम्म. पूरा। हम्म. हाँ, वो तो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि प्रीवियस जो फूड पार्टिकल है ना, वो अभी तक डाइजेशन के लिए गया ही नहीं है, वो अभी भी वहीं पर ही है. लेकिन जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो पेस्ट बन चुका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स हो चुका है, सिर्फ वही ऊपर आएगा. वो वाला ऊपर नहीं ओके, आएगा, उसको तो मतलब वो पार्टिकल को खाना भी मिक्स डाइजेस्ट नहीं करने हो के रहा लिए. है। करेक्ट. आपका खाना उसका रीजन प्रॉपरली मिक्स मैम नहीं. क्यों वो मिक्स क्यों नहीं हो रहा, मतलब वो उसको पार्टिकल्स अगेन सेम चीज है, क्योंकि तोड़ के। उसके जो हम्म, जूसेस हैं वो सिक्रीट नहीं हो रहे प्रॉपरली बॉडी में. कभी कभी वही खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है, मतलब पता नहीं जो जूसेस आ जाते हैं फिर से, तो नहीं, सेम। वो आप खाना जो खा रहे हो, वो कितनी देर में खा हम्म, रहे हो, टाइम गैप कितना है, हम्म, एक्सरसाइज कितनी करते हो, प्राणायाम आप कितना करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. खाना खाने से पहले पानी पिया था, बाद में पिया था, बीच में पिया था, कौन सा पिया था, रायता खाया था, छाछ ली थी, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है. खाना बनाते वक्त आपके मसाले क्या यूज हो रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है. आप खा क्या रहे हो, वो डिपेंड करता है. आपने फॉर एग्जाम्पल दाल बनाई, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, और यही दाल आपने कुछ दिन बाद फिर से बनाई,
एक दिन गैस करके एक दिन नहीं करी। एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्यों ऐसा क्यों हुआ? एक दिन आपने उस दाल में पानी बहुत ज्यादा अच्छे से लिया था और दाल अच्छे से गल गई थी। दूसरे में दाल तो गली पर पानी कम था, तो वहां वो दाल हैवी हो जाएगी और वो टाइम लेगी डाइजेस्ट होने में। ठीक है। ऐसे ही आपके सारे खाने में जो आपकी थाली होती है ना, वो बहुत ही प्रॉपर अच्छी तरीके से मैनेज होनी चाहिए। आप अनियन भी खा रहे हो तो कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। मिर्ची ली है, अचार लिया है, कुछ भी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ सारी चीजों के। चटनी ली है, हरी धनिया वाली जो चटनी होती है हम वो खाते हैं। इंडिया में जो हमारा खाना है ना, वो जो थाली है, वो आप समझे कि इसके बाहर जाने की कोई नीड नहीं है। उसमें सब कुछ होता है। अगर आप उसका क्वांटिटी देखें ना अच्छे से, आप ये डाइट एंड न्यूट्रिशन में अच्छे से पढ़ोगे कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए। बहुत डिटेल में पढ़ोगे इस चीज को कि आपकी टेबल पे, आपके खाने में, आपके किचन में, आपकी थाली में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। एक प्रॉपर मील का जो मीनिंग होता है ना, वो यही होता है। अब आता है गैस्ट्रिक और एसिडिक रिफ्लक्स की बात आती है। जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि खाना अब जस्ट मैंने अभी खाया था और वो प्रॉपरली वो वाला तो नहीं आया, उसका टेस्ट नहीं आया, लेकिन टेस्ट उसका आया जो जो मेरा पहले का खाना खाया हुआ था। क्योंकि जो आपने खाना भी खाया ना, वो तो अभी प्रॉपरली जूसेस के साथ मिक्स भी नहीं हुआ। वो अभी आप समझिए कच्चा ही है। एग्जाम्पल के तौर पे वो भी कच्चा ही है। लेकिन जो मथा जा चुका हुआ है और जो अभी उसके अंदर जो ऊपर की लेयर में चिपका हुआ है, ऊपर की लेयर में थोड़ा थोड़ा ऊपर था, आपने जैसे फूड पार्टिकल डाला उसके अंदर डुबोया, तो जो ऊपर वाली लेयर में, जैसे कि आपने दूध उबलने में लगा, ठीक है, दूध उबलने के लिए रख दिया आपने, ओके। थोड़ी देर बाद ना मलाई आ गई। हम सब दूध को क्यों उबालते हैं? मलाई के चक्कर में उबालते हैं, ठीक है, क्योंकि पेस्चराइज मिल्क तो सबके पास आता है, पर हम मलाई के लिए उबालते हैं। ठीक है, मलाई की ना एक परत ना ऊपर पर रह गई है। आपने कहा मुझे थोड़ा दूध कम लग रहा है, मैं दूध और ऐड कर देती हूँ। आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मलाई ऊपर वाली पहले आएगी, या जो दूध आपने नया डाला है उसकी मलाई पहले ऊपर आएगी? बताओ प्रियंका जी, किस यस मलाई की मैम, लेयर मैं पहले एक ऊपर बार आएगी? आपने दूध डाला उबलने के लिए, जी ठीक है, जी। आपको मलाई चाहिए हम्म थी दूध से, हम्म और एक लेयर पहले हल्की सी मलाई की आ चुकी है, ठीक है। हम्म आपने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ, बचा हुआ है। आपने एक गिलास दूध हम्म और डाल दिया उसके अंदर, ठीक हम्म। है। अब मुझे बताएं, जो लेयर मलाई की बनेगी, वो पहली मलाई के ऊपर आएगी या नीचे आएगी? जो नीचे। पहले से जमी हुई है वही ऊपर आएगी, और जो अभी डालेगी वो थोड़ी सी नीचे चली जाती है ना। करेक्ट। तो यही आपका रीजन आता है कि जो चीजें आपकी डाइजेस्ट हुई थी, वो तो उनमें से बहुत सारा तो नीचे डाइजेस्ट होके चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसके स्टमक की लाइनिंग में अभी भी मतलब थी। वो वाला प्रोसेस होने चला गया, क्योंकि वो प्रोसेस के लायक था तो वो चला गया, और जो लायक नहीं था वो ऑलरेडी वहां सफर कर रहा है तो वो ऊपर आ गया। करेक्ट, आप ये भी कह सकते हो। प्लस लेकिन वो प्रॉपरली फूड नहीं होता, वो सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत परत बची बचाई जो होती है ना, उसकी लेयर पे, स्टमक अच्छा, की अब लेयर पे जैसे चिपकी हुई है, भूख जो बस। हमें लगती है ना, तो वो ग्रेविन जी, हार्मोन के कारण लगती है। तो जैसे खाना अगर पेट में है, मतलब भूख का कब लगे, जब पेट पूरा खाली हो जाएगा तब उसमें भूख लगती है, या फिर जो हमारा जब स्टूल पास होता है तो वो रीजन है कि भूख लगने का मतलब एहसास होता है। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है थोड़ा। दो चीजें हैं ये। आप एंडोक्राइन सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको एक्चुअली में और ज्यादा क्लियर होगा। अगर आपको एक खाना खाने के जो मील लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे मॉर्निंग में, फिर 2 बजे करीब अगर आपको भूख लग रही है, तो ये करेक्ट है। 6 घंटे के अंतराल में अगर आपको भूख लग रही है, तो ये करेक्ट है। इतनी देर में 4 घंटे जो स्टमक में खाना था, देन स्टूल पास हो गया या नहीं भी हुआ, तो भी उसके लिए वो खाना नीचे भी स्टूल में बनेगा भी। अभी बनेगा, अभी बना नहीं है, अभी बनेगा, एब्जॉर्प्शन सब चल रही है उसकी। अगर इस देर में अगर आपको खाना नहीं, आपने कोई और चीज नहीं खाई है, तो ये बेस्ट पार्ट है। और आपको 2 बजे भूख लग रही है, ये बहुत ही उत्तम तरीका है। इसका मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल सही तरीके से जा रही है। अगर इसके बीच में बार बार भूख लग रही है, या खाया भी जा रहा है, खा भी रहे हैं, हम अच्छे से खा रहे हैं, ठीक है, खाने की बात कर रही हूँ मैं, ये जूस की, या बीच में जूस भी नहीं कहेंगे, पानी वगैरह पी रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में जो चर्निंग मंचिंग चलती रहती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपको प्रॉपर्ली भूख लग रही है, तो मीन्स आपका हार्मोनल बैलेंस है। अगर आपको इस 6 घंटे के अंदर अच्छी खासी भूख लग रही है, और एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार लग रही है, तो इट मीन्स आपका हार्मोनल यानी कि मेटाबॉलिक रेट जो है आपका, वो गड़बड़ाया हुआ है। हार्मोनल
इम्बैलेंस है। और ये तभी होता है जब प्रॉपर एक्सरसाइज ना की गई हो, आपका जो मील है, थाली में जितना भी खाना है, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ हुआ है। तो उस केस में थर्ड कॉज जो आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से दूसरी व्याधियां आती हैं, किसी को पीसीडी हुआ, किसी को बीपी हाई हो गया, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो वो थायराइड हो गया किसी भी केसेस में, तो वो हमारा खाने खाने की जो प्रक्रिया है या जो भूख है, उस पे मैम वो उसको। स्ट्रेस में भी लोग बहुत खाते रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते रहते हैं सबके कि साथ होता है। खाते ही रहते नहीं, कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग भूखे रहते हैं, और कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है। दोनों तरीके कैसे होते हैं स्ट्रेस में। कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल पतले हो जाते हैं, वो खा ही नहीं सकते। हैं। मैम उनसे भूख लगने का रीजन क्या है? मतलब मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो जाता है या मतलब ज्यादा जल्दी हाँ, खाना हजम हमारी हो बॉडी जाता है? यूज करती है। करेक्ट। हमारी बॉडी को ना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो पहले तो उसको ठीक कर रहा होता है, फिर उसके बाद मैम टाइम हो गया, ओके प्रेरणा जी, सॉरी। ठीक है। तो भूख जो लगती है वो इसी वजह से लगती है, और स्ट्रेस के अंदर कि आपका हार्मोन्स जो होता है वो सब कुछ यूज कर लिया उसने। अब वो बस ये कहना चाहता है, एक तरह से वो एक माइंड डाइवर्ट करने का तरीका होता है कुछ लोगों का। कुछ लोग चॉकलेट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, क्रेविंग होती है उनको इस चीज की। उनको लगता है कि अगर तुम ये खाओगे ना, तो तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। मीठे की लगती है, क्रेविंग लगती है जब लोग रोते हैं, लड़कियों में बहुत होता है ड्यूरिंग द मेंसेस, इवन आफ्टर द पीएमएस। मीठे की बहुत क्रेविंग होती है। व्हेन दे आर इमोशनल, मीठे की क्रेविंग होती है। अगर आप उन्हें अच्छा खासा मीठे का, यानी कि आइसक्रीम का एक टब दे दें, वो बैठ के खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुशी खुशी खाएंगे, चॉकलेट चीजें खाएंगे। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। जितना आप इन सब चीजों को अवॉइड करने का तरीका क्या है, जो घास होती है उस पे नंगे पैर चलें, जिसपे ओस वाला होता है ना पानी, वो वाला। बारिशों का मौसम मत चलना, वहां तो बहुत कीड़े मकोड़े होंगे, मतलब ऑफ कोर्स मौसम के हिसाब से आप देख के चलें इस चीज को। घास पे चलना, धूप में रहना, ग्रीनरी को देखना, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं हमारी साइकोलॉजिकली हमें। हम पानी के पास रहना, आप किसी भी सिविलाइजेशन को अगर आप देखोगे, किसी भी स्टेट को अगर आप देखोगे, किसी कंट्री को अगर आप देखेंगे, स्पेशली स्टेट की बात करूँ तो वो ज्यादा हरी भरी जो स्टेट होगी ना, जो बहुत फलित है, या जो भी देश बहुत ज्यादा फलित है, आप देखेंगे कोई भी देश इस दुनिया में कहीं पे भी हो, वो सिर्फ पानी के एरिया के आसपास ही होता है। क्यों? वहीं से तो सब कुछ है। पानी जीवन है, पानी ही जीवन है। देन उसके बाद सेकंड चीज क्या आ जाती है? पेड़ पौधे। दूसरा जीवन जो हमें चाहिए वो पेड़ पौधे हैं। और हमेशा आपको हमेशा पानी के आसपास वहां पेड़ पौधे मिल जाएंगे। हर तट के आसपास कहीं ना कहीं पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। तो वो एरियाज हमेशा ही आपको देखेंगे वहां पे। राज्य या कहीं की वहां के जो स्टेट्स हैं वो हमेशा आपको इसी तरह से मिलती हैं। वो राज्य आपको बड़े बड़े ऐसे ही मिलते हैं, इस वजह से मिलते हैं क्योंकि वहां पे आपका एक तो खाने पीने का, चलो तो वो एक चीज ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली इट्स वेरी मच फीजिबल ना। सेकेंडली क्या होता है कि आप पानी के आसपास कहीं बैठते भी हो ना, चाहे समुद्र हो या नदी जा रही है, नहर जा रही है, उनके आसपास भी अगर कभी बैठ के देखेंगे तो आपको हार्मोन्स में काफी डिफरेंस आएगा। साइकोलॉजिकली इट मैम अफेक्ट्स। इवन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में देखो लोग कम है, पर हाँ, एक आर्टिफिशियल पानी का एरिया तो हो ही गया ना। हाँ। नेचुरल जो होता है ना वो ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसमें भाव चलता है पानी का, ओके। जिसमें मूवमेंट हो ना पानी की, वो ज्यादा अफेक्ट करता है स्विमिंग पूल से ज्यादा। आप क्योंकि जो मैम घर हम में, लोग की बॉडी में ज्यादा मतलब 70% पानी होता है, तो पानी में जल्दी से अट्रैक्ट करता है रिलैक्स करने में। एग्जैक्टली यही तो रीजन होता है जिसकी वजह से मून हमारे पर अफेक्ट करता है। एकादशी क्यों रखते हो? व्रत क्यों रखते हो एकादशी का? इसी वजह से तो रखते हैं, वाटर फ्लो ऊपर जाता है। मून के एनर्जी के टाइम पे पूर्णमासी की रात में पूर्व, से समुद्र भी ज्यादा वेव्स करता है ना, तो वही पानी का रीजन। एग्जैक्टली टाइड्स जो होती हैं उसको पूरा अट्रैक्ट करता है, मून अट्रैक्ट करता है। इसकी अगर ज्यादा डिटेल पढ़नी है तो डिस्कवरी पे जा सकते हो, डिस्कवरी में बहुत कुछ अच्छे से दे रखा है इसके ऊपर डिटेल में। डिस्कवरी चैनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलें। किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि जो क्वेश्चन था वो थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी। दैट्स ओके। चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसे।